کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کو تہجد نصیب تو ہوتی ہے مگر پھر اچانک چھوٹ جاتی ہے، اور تہجد جیسی عظیم نعمت کی، عظیم عبادت کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ اور صرف تہجد ہی نہیں، کیا ہماری 5 نمازیں بھی ہم سے خاموشی سے دور ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم نے ان کی حفاظت نہ کی تو آج کی ویڈیو شاید صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں کھو دینے کے بعد انسان افسوس کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سکون کھو دیتے ہیں، برکتیں کھو دیتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا احساس کھو دیتے ہیں، اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اور پھر ایک دن احساس ہوتا ہے کہ شاید نمازوں سے دوری نے دل کی روشنی کو مدھم کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کی حفاظت کی، لیکن صرف تہجد کی نہیں، ہم ان نمازوں کی بھی بات کریں گے جو ہم پر فرض ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تہجد محبت ہے، عشق ہے، اور فرض نمازیں ہر حال میں ہم نے پڑھنی ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے، اور محبت کبھی ذمہ داری کو پیچھے نہیں چھوڑتی۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی آ جاتی ہے، اگر آپ تہجد شروع کرتے ہیں پھر چھوٹ جاتی ہے، اگر آپ دعائیں کرتے ہیں مگر قبولیت کا انتظار طویل لگتا ہے، اگر آپ زندگی کی پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی روحانی امید دینے والی، دل کو رب سے جوڑنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور کامنٹ میں ضرور لکھیے انشاءاللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے والوں میں شامل فرما۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو۔ آج جانتے ہیں کہ تہجد کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز اور شاید سب سے اہم چیز، اگر آپ نمازوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، چاہے فرض نمازیں ہوں یا نوافل ہوں، تو نماز کو بعد میں مت رکھیے، کیونکہ بہت دفعہ نماز سستی سے نہیں چھوٹتی، نماز صرف تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا سے چھوٹتی ہے۔ فجر کا وقت ہوا، ہم نے کہا ابھی 5 منٹ اور، ظہر کا وقت ہوا، ہم نے کہا پہلے یہ کام ختم کر لوں، مغرب کا وقت، ذمہ داریوں میں گزار دینا، اپنے کاموں میں گزار دینا۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، ہم نے کہا ذرا موبائل دیکھ لیں، اور تہجد ہم نے کہا آج بہت تھکن ہے، کل سے شروع کروں گی، کل سے شروع کروں گا۔ یاد رکھیے شیطان ہمیشہ آپ کو، ہم کو نماز چھوڑنے کا نہیں کہتا، بعض اوقات وہ صرف یہ کہتا ہے ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد، اور یہی تھوڑی دیر کبھی کبھی پوری عبادت کو ہم سے دور کر دیتی ہے۔ اگر آپ واقعی نماز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی تہجد کو بچانا چاہتے ہیں، تو جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو، دل میں یہ احساس جاگنا چاہیے میرے رب نے مجھے بلایا ہے۔ سوچئے کوئی دنیا کا اہم انسان آپ کو بلائے تو کیا آپ اسے انتظار کروائیں گے؟ نہیں نا، تو پھر رب العالمین کے بلانے پر تاخیر کیوں؟ اور تہجد تو ایسی نماز ہے کہ 5 وقت کے پکے نمازیوں کو بھی
बहुत कम नसीब होती है, बड़े ही नसीब वालों को नसीब होती है। ये वो लम्हा है जब दुनिया सो रही होती है और अल्लाह अपने बंदे को देख रहा होता है कि कौन है जो सब छोड़कर मेरे दर पर आया है। तहज्जुद की हिफाजत का दूसरा राज ये है कि नमाज को अपनी तरजीहात में सबसे ऊपर रखिए। ज़रा खुद से एक सवाल कीजिए, हम अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों के लिए वक्त निकाल लेते हैं? ज़रूरी फ़ोन कॉल, अहम मेहमान, बच्चों के काम, बाज़ार जाना, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, पसंदीदा ड्रामा, मोबाइल, सोशल मीडिया, हम वक्त निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिल ने इन्हें अहम मान लिया होता है। और याद रखिए, जिस चीज़ को दिल अहम मान ले, इंसान उसके लिए रास्ता खुद बना लेता है, वक्त खुद ही निकाल लेता है। अब खुद से एक सवाल कीजिए कि हमारी नमाज वाकई हमारी तरजीह है? नमाज जिस की तरजीह है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि जो चीज़ तरजीह बन जाए वो वक्त मिलने पर नहीं की जाती, उसके लिए वक्त बनाया जाता है, उसके लिए बाकी काम छोड़े जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता, लेकिन हकीकत ये है वक्त नहीं मिलता, वक्त निकालना पड़ता है। और नमाज तो वो मुलाकात है जिसके लिए ज़मीन से आसमान तक दरवाजे खुलते हैं। ये सिर्फ चंद रकातें नहीं, ये रूह का सुकून है, दिल का सहारा है, गमों के मौसम में उम्मीद की रोशनी है और बहुत ही खूबसूरत दुआ है। और तहज्जुद तो वो लम्हा है जब इंसान दुनिया से नहीं, बराहे रास्त अपने रब से बात करता है। सारी दुनिया सो चुकी होती है, ना कोई सुनने वाला ना कोई देखने वाला, सिर्फ एक ही सुनने वाला, एक ही देखने वाला, और वो होता है पाक परवरदिगार। ऐसी बात जो शायद दिन की रोशनी में कभी ना हो सके। कितने लोग हैं दिन भर लोगों के सामने मजबूत बने रहते हैं, लेकिन रात की तन्हाई में टूट जाते हैं, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हैं। और फिर एक सजदा, सिर्फ एक सजदा उनके दिल का बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, ये दिल की मुरम्मत है। ये वो वक्त है जब बंदा अपनी अधूरी दुआएं, अपने छुपे हुए ज़ख्म, अपने खौफ, अपनी महरूमियाँ सब अल्लाह के सामने रख देता है। और देखिए ना, दुनिया वाले आपकी बात पूरी ना सुने, लेकिन अल्लाह रात के तीसरे पहर आपकी खामोशियाँ भी सुनता है। खुद फरमाता है कोई मांगने वाला कि जिससे मैं अता करूं। इसलिए अगर आप दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हैं, आप अपनी दुआओं की कबूलियत चाहते हैं, आप घर के सुकून की तलाश में हैं, रिज़्क़ की तलाश में हैं, दिल बेचैन ना रहे, दुआओं में जान आ जाए, आँखें कुन फायकुन के जलवे देखें, तो नमाज को तरजीह बनाइए और तहज्जुद को इख्तियारी समझकर पीछे ना रखिए। क्योंकि बाज़ नेमतें फ़र्ज़ नहीं होती, मगर इंसान की किस्मत बदल देती हैं। और तहज्जुद इन्हीं नेमतों में से एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। एक छोटी सी आदत आज से अपना लीजिए, अपने दिन भर के कामों की एक तरतीब बना लीजिए।
और वो तरतीब नमाज के मुताबिक बनाइए। नमाज को उस तरतीब में फिट ना कीजिए, बल्कि वो जो तरतीब होनी चाहिए वो नमाज के गिर्द घूमनी चाहिए। आप हैरान रह जाएंगे कि जब बंदा नमाज को अहम समझने लगता है तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी के बिखरे हुए मामलात भी संभालना शुरू कर देता है। तीसरी बात, आखिर हम नमाज की हिफाजत क्यों करें? क्या सिर्फ इसलिए कि ये फ़र्ज़ है? इसलिए कि जो नवाफिल नमाज़ें हैं वो हमारी कबूलियत का ज़रिया है, हमारी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। जी, ये फ़र्ज़ भी है, हमारी दुआओं की कबूलियत का भी ज़रिया है, लेकिन नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, ये बंदे और रब के दरमियान ज़िंदा ताल्लुक़ है, खूबसूरत रिश्ता है। ऐसा रिश्ता जो टूट जाए तो दिल भरे मजमा में भी खाली लगता है, और अगर जुड़ जाए तो इंसान आजमाइशों में भी मजबूत रहता है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नमाज की हिफाजत करने वालों के बारे में कितनी अजीम बात फरमाई। अल्लाह ताला सूरतुल मोमिनून में फरमा रहा है, और जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं यही लोग वारिस हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे और इसमें हमेशा रहेंगे। ज़रा गौर कीजिए, फिरदौस कोई आम जन्नत नहीं, जन्नत का बुलंद तरीन मुकाम, और वहाँ तक पहुँचने वालों की सिफ़ात में एक सिफ़त क्या बताई गई? नमाज़ों की हिफाजत। सिर्फ नमाज पढ़ लेना नहीं, हिफाजत करना। हिफाजत का मतलब क्या है? वक्त की हिफाजत, इखलास की हिफाजत, यानी नीयत खालिस होनी चाहिए, तवज्जो और सुस्ती से पाक नमाजी। क्योंकि बाज़ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन जल्दी में, बेध्यानी में, ऐसे जैसे कोई बोझ उतार रहे हो। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज में दाखिल होते हैं दिल के साथ, तवज्जो के साथ, शौक़ के साथ, इश्क के साथ, और फिर वही नमाज उनकी तकदीर के अंधेरों में रोशनी बन जाती है। और तहज्जुद तो नमाज़ों की रूह जैसी है, और ये वो नमाज है जो आप सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के ख़ास इश्क के लिए पढ़ते हैं। ये नमाज अल्लाह ताला की बहुत लाडली नमाज है। ये वो वक्त होता है न दुनिया देख रही होती है, ना कोई तारीफ़ करने वाला, ना कोई दिखावा, सिर्फ आप और आपका रब। और शायद इसीलिए तहज्जुद में मांगी गई दुआओं में एक अजीब तासीर होती है। कितने लोग हैं जिनके बिगड़े काम संवर गए, दिलों की बेचैनियाँ ख़त्म हो गई, घरों के हालात बदल गए, रिज़्क़ के दरवाज़े खुल गए, और बाज़ लोगों को तो वो मिला जिसकी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि रात के सन्नाटे में की गई दुआ बहुत ताकत रखती है। ये वो वक्त है जब बंदा टूट कर दुआ करे तो आसमान खामोश नहीं रहता। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अपनी दुआओं में तासीर चाहते हैं, अपनी औलाद, रिज़्क, सेहत, रिश्तों और दिल के सुकून में खैर चाहते हैं, तो नमाज़ों की हिफाजत शुरू कर दीजिए। अगर मुमकिन हो तहज्जुद को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात दुनिया के बंद दरवाज़े रात के सजदों से खुलते हैं। तहज्जुद की बरकतों से कहीं सख्त दिल नरम हो रहे होते हैं, कहीं
बंदिशें टूट रही होती हैं, कहीं रुकावटें दूर हो रही होती हैं, कहीं आपका दिल बदल रहा होता है, कहीं आपकी तकदीर बदल रही होती है, और कहीं अर्श पर दुआओं की कबूलियत के ख़ास तोहफे आपके लिए तैयार किए जा रहे होते हैं। चौथी अहम चीज़ ये सालिहीन की रविश है, ये नमाज़ी इश्क है। आप इसको खुद पर लाजिम कर लें। और नमाज चॉइस नहीं होनी चाहिए, ये तो रब ताला का हुक्म है कि 5 वक्त की नमाज़ें अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं। और ये जो नमाज़ तहज्जुद है, ये नमाज इश्क है कि हमने 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ों में अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को कितना मज़बूत किया, अल्लाह ताला को कितना राज़ी किया। और फिर अल्लाह ताला हमें ये नमाज तोहफे में देता है, ये इश्क अता फरमाता है। तो इस इश्क की नमाज को हमें खुद पर लाजिम करना चाहिए। आज एक बात बहुत मोहब्बत से लेकिन बहुत सच्चाई के साथ हमने ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को इख्तियार समझ लिया। दिल चाहा तो कर लिया, दिल ना चाहा तो छोड़ दिया। लेकिन नमाज हमारी चॉइस नहीं, ये हमारे रब का हुक्म है। सोचिए, अगर दुनिया का कोई अहम काम हो, नौकरी हो, इम्तिहान हो, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो, तो चाहे दिल करे या ना करे हम जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है ये ज़रूरी है। तो फिर वो ज़ात जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सांसें दी, जिसने हमें ज़िंदगी दी और बेशुमार नेमतें दी जिनको हम गिन भी नहीं सकते, क्या उसके बुलाने को हम अपनी मर्ज़ी पर छोड़ सकते हैं? ये बात अपने दिल में बिठा लीजिए। नमाज मूड से नहीं पढ़ी जाती, नमाज ज़िम्मेदारी से पढ़ी जाती है, खालिस नीयत से पढ़ी जाती है। क्योंकि बाज़ दिन दिल नहीं चाहेगा, बाज़ दिन तबीयत बोझल होगी, बाज़ दिन गम होंगे, बाज़ दिन सुस्ती होगी, और बाज़ दिन शैतान यही कहेगा आज छोड़ दो। लेकिन नमाज की हिफाजत करने वाले लोग अपने नफ्स की नहीं सुनते, अपने रब की सुनते हैं। और याद रखिए, आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन वो नहीं होते जब हालात ख़राब हों, बल्कि वो दिन होते हैं जब इंसान नमाज से दूर होना शुरू हो जाए। क्योंकि नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये हिफाजत है। जब आपसे कभी सुबह की फजर की नमाज़ छूट जाए ना, तो उस दिन ये अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि आज आप बहुत बड़ी कामयाबी से महरूम हो गए हैं, आज आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जब भी हमारी कोई नमाज छूटती है तो याद रखिए वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता की गई बहुत बड़ी नेमत है, और इसकी हमें हिफाजत करनी है। और ये हमारी हिफाजत करती है, गुनाहों से हिफाजत, मायूसियों से हिफाजत, बेसुकूनियों से हिफाजत, दिल के अंधेरों से हिफाजत। और तहज्जुद उन लोगों की नमाज है जो सिर्फ जीना नहीं चाहते बल्कि बदलना चाहते हैं, जो सिर्फ दुआएं नहीं मांगते, कबूलियत चाहते हैं, जो सिर्फ ख्वाहिशें नहीं रखते, रब के दर पर सच्चे दिल से दस्तक देते हैं। और अगर आप वाकई किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, कोई दुआ है, कोई मकसद है,
कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई औलाद का मसला है, कोई रिस्क की तंगी, कोई दिल का सुकून नहीं है आपके पास, तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं वाकई इसके लिए सिंसियर हूँ? क्योंकि सच्ची चाहत सिर्फ सोचती नहीं, उठती भी है, जागती भी है, रब के दर पर हाजिरी भी देती है, रात के आखिरी पहर वज़ू भी करती है और रब के सामने खड़ी भी होती है। ये मत सोचिए कि जब सब कुछ ठीक होगा तब तहज्जुद पढ़ूँगा, बल्कि कभी कभी हकीकत ये होती है, जब आप तहज्जुद शुरू करते हैं तब चीज़ें ठीक होना शुरू होती हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, फ़र्ज़ नमाज़ें बुनियाद हैं, अगर बुनियाद कमज़ोर हो तो इमारत मजबूत नहीं रहती। इसलिए सबसे पहले अपनी 5 वक्त की नमाज़ों की हिफाजत कीजिए और फिर तहज्जुद को अपनी रूह की ग़िज़ा बनाइए, क्योंकि कुछ दुआएं सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, उनके लिए रातों को जागना पड़ता है। तहज्जुद की हिफाजत के जो अगले अहम पॉइंट्स हैं वो हम पार्ट 2 में शामिल करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।